Hello everyone, welcome to Nikita Jain Insights. So far in neural networks, we have discussed about what are neural networks, what are single layer neural networks, what do we mean by multi-layer neural networks. Then in the last video, we also discussed about fitting any neural network and about the backpropagation method. So in this video, we'll learn about some more important characteristics that are necessary while training any neural network. So in this video, we will be discussing about what is stochastic gradient descent, then what do we mean by regularization, what is dropout, and we'll also learn about tuning any neural network. So let's begin. So there are three important ideas which are used while training any neural network. First is stochastic gradient descent, second is regularization, and third is early stopping. So जब हमने gradient descent के बारे में पढ़ा था, तो ये stochastic gradient descent अब क्या है? So the question is why gradient descent is slow? क्या drawback था gradient descent में जिसकी वजह से we have to turn to stochastic gradient descent? So earlier we learned that neural networks are trained using gradient descent. ये हमने देखा था कि जो gradient descent होता है वो अपडेट कैसे करता है weights को. जो भी मेरा new weight होगा that will be equivalent to my old weight minus learning rate into the partial derivative of this. This is the function that we have learned about when we discussed about the backpropagation method. Now जब हमारा डेटा सेट अगर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, मेरे डेटा सेट में ट्रेनिंग सैम्पल्स बहुत ज़्यादा वैल्यू है उनकी, देन computing this gradient descent using all the observations becomes very slow. इस फैक्टर को कंप्यूट करना for all the observations that I have in my data set becomes a very difficult task. So that is why let's say मेरे ट्रेनिंग सैम्पल्स में कुछ 60,000 ट्रेनिंग सैम्पल्स है, राइट? तो अगर मैंने ग्रेडियंट डिसेंट कंप्यूट करा फॉर ऑल दी 60,000 पॉइंट्स, देन द ट्रेनिंग बिकम्स वेरी स्लो, right? So the solution to this is stochastic gradient descent. Stochastic gradient descent का क्या मतलब होता है? So instead of using the entire data set, हम use करते हैं एक small set of the entire data set which is called a mini batch. So what do we mean by stochastic gradient descent? Stochastic gradient descent means that instead of using the entire data set, instead of using the entire data set, हम यूज करते हैं we use a small subset which is called a mini batch, right? तो let's say अगर मेरा डेटा सेट का साइज होता है, अगर मेरे डेटा सेट में let's say कुछ 60,000 इमेजेस है, let's say हम यूज कर रहे हैं इमेज रिकॉग्निशन का डेटा, राइट? सो अगर मेरे डेटा सेट में कुछ 60,000 इमेजेस हैं, तो स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट के लिए हम मिनी बैच क्रिएट करेंगे विच विल कंसिस्ट ऑफ लेट्स से अ स्मॉल बैच ऑफ दिस एंटायर डेटा सेट, लेट्स से सम 128 इमेजेस, राइट? नाउ जो मेरा ग्रेडियंट कंप्यूट होगा वो कंप्यूट होगा यूजिंग ओनली दीज 128 सैंपल्स एट अ टाइम. पहले ग्रेडियंट डिसेंट के लिए हम पूरा 60,000 यूज करते, बट इन स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट हम उसका एक पार्ट, एक सबसेट यूज करेंगे ऑफ माय एंटायर डेटा सेट, सो दैट माय कंप्यूटेशंस आर अ बिट फास्ट. सो इसकी वजह से क्या होगा, जो आपकी ट्रेनिंग होगी दैट विल बी मच फास्टर कंपेयर टू द रिजल्ट्स दैट वी हैव गॉट इन ग्रेडियंट डिसेंट. ट्रेनिंग बिकम्स मच फास्टर. सो मिनी बैच क्या होता है हमारा स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में? मिनी बैच इज माय जस्ट अ स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रेनिंग सैंपल्स, राइट? तो अगर मेरे डेटा सेट में जैसे अभी हमने देखा, अगर मेरे पास 60,000 इमेजेस हैं, तो मेरा मिनी बैच क्या है? और 128 इमेजेस. तो अब ट्रेनिंग कैसे होती है इस केस में? सबसे पहले स्टेप 1 में हम ट्रेन करेंगे, यूज करेंगे पहली 128 इमेजेस को. देन स्टेप 2 में ट्रेनिंग के लिए हम यूज करेंगे जो नेक्स्ट मेरी 128 इमेजेस है, नेक्स्ट 128 इमेजेस. फिर स्टेप 3 में हम यूज करेंगे जो उससे नेक्स्ट 128 इमेजेस है, एंड सो ऑन दिस प्रोसीजर विल कंटिन्यू. सो ग्रेडियंट डिसेंट में पूरा इंटायर हम एक साथ यूज करते थे, स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में हम एक स्मॉलर बैच बना के उनका यूज करते हैं. सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट और SGD, राइट? नाउ द क्वेश्चन इज
व्हाट डू वी मीन बाय रेगुलराइजेशन? सो रेगुलराइजेशन के बारे में हमने थोड़ा डिस्कस किया था व्हेन वी डिस्कस्ड अबाउट मल्टीलेयर न्यूरल नेटवर्क. सो क्या मतलब होता है रेगुलराइजेशन का? सो रेगुलराइजेशन के लिए पहले हमने देखा था व्हाट डू वी मीन बाय ओवरफिटिंग. सो ओवरफिटिंग का क्या मतलब होता है? लेट्स से अगर ये जो मेरा न्यूरल नेटवर्क का एंटायर डेटा सेट है, इसमें हमारे पास कुछ 2 लाख, जस्ट एन एग्जांपल, इतने वेट्स हैं, राइट? बहुत बड़े मेरा न्यूरल नेटवर्क है, लार्ज नेटवर्क ऑफ न्यूरल नेटवर्क है, और जिसमें मेरे पास टोटल इतने वेट्स हैं, राइट? अगर मेरे पास इतने डेट्स हैं, टोटल वेट्स तो मेरे पास इतने हैं, बट लेट्स से जो मेरा ट्रेनिंग सैंपल है, जो हमने ट्रेनिंग डेटा सेट यूज करा है, उसमें मेरे पास कुछ 60,000 सैंपल्स ही हैं, राइट? तो क्या होता है जब मेरे मॉडल में बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स होते हैं, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग द करेक्ट रिजल्ट्स, क्या होगा, जो आपका मॉडल होगा वो ट्रेनिंग डेटा पे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे देगा, बट सिंस इट मेमोराइजेस दोज रिजल्ट्स, बट व्हेन इट कम टू गिविंग एन एक्चुअल वैल्यू फॉर द टेस्ट डेटा, तब वो उसमें उसकी एक्यूरेसी जो होती है वो वेरी कर जाती है, उसकी एक्यूरेसी कम हो जाती है. सो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ ओवरफिटिंग, that when a model has too many parameters, there can be a chance that the model may memorize few values, because of which it may give true results for the training data but not true values in case of the test data. अब इस ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं रेगुलराइजेशन. रेगुलराइजेशन का क्या मतलब होता है? रेगुलराइजेशन मीन्स विच प्रिवेंट्स द मॉडल फ्रॉम बिकमिंग टू कॉम्प्लेक्स. सो रेगुलराइजेशन मेरा एक मेथड है जिस मेरे मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी को कंट्रोल करता है. और कैसे मेरी मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी को कंट्रोल करता है? रेगुलराइजेशन क्या करेगा, जहां पे भी उसको देखेगा कि वेट्स की वैल्यू बहुत ज्यादा है कुछ कुछ न्यूरॉन्स के लिए, तो वो क्या करेगा, उन वेट्स को पेनलाइज करेगा. इट पेनलाइजेज दी लार्ज वेट्स, राइट? तो रेगुलराइजेशन क्या करेगा, जो मेरे लार्ज वेट्स हैं उनकी वैल्यू को पेनलाइज करेगा. उसकी वजह से क्या होगा, माई मॉडल विल बी फोर्स to keep weights small and simple. To keep weights small and simple, right? अब रेगुलराइजेशन करने के हमारे पास दो मेथड्स होते हैं. एक तो होता है मेरा रिज रेगुलराइजेशन और एक होता है मेरा लासो रेगुलराइजेशन. तो द इक्वेशन देखते हैं रिज रेगुलराइजेशन का क्या मतलब होता है. सो कमिंग टू रिज रेगुलराइजेशन इक्वेशन, रिज रेगुलराइजेशन इक्वेशन. कैसे लिखते हैं हम रिज रेगुलराइजेशन इक्वेशन को? पहले आई एम राइटिंग द इक्वेशन एंड देन हम एक एक करके उसके सारी वैल्यूज का मतलब समझेंगे. सो इस टर्म से हम ऑलरेडी अवेयर है. ये क्या होता है, मेरे सारे पैरामीटर्स होते हैं, जितने भी मेरे मॉडल के अंदर पैरामीटर्स है. पैरामीटर्स कौन से होते हैं? दो टाइप के होते हैं. एक होता है मेरे वेट्स, एक होते हैं मेरे बायसेस. ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं व्हेन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस इन अ प्रीवियस वीडियोस. सो थीटा डिनोट कर रहा है मेरे सारे पैरामीटर्स को, और ये जो लैम्डा है ये डिनोट कर रहा है मेरे रेगुलराइजेशन के पैरामीटर को. So what is the regularization, ridge regularization equation? Ridge regularization equation is minus of I equals to 1 से n तक जितने भी मेरे सैंपल्स हैं, m डिनोट कर रहे हैं मेरी जितनी भी क्लासेस हैं, yim डिनोट कर रहे हैं मेरी प्रेडिक्टेड क्लास की प्रोबेबिलिटी को, प्लस लैम्डा समेशन ऑफ थीटा जे स्क्वायर. सो दिस इज माई रेगुलराइजेशन इक्वेशन, रिज रेगुलराइजेशन इक्वेशन. तो पहले मतलब समझते हैं पूरी इक्वेशन का. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ये फर्स्ट टर्म जो है, राइट? ये जो मेरी फर्स्ट टर्म है इसको हम कहते हैं लॉस. दिस इज माई बेसिकली लॉस इक्वेशन. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट हाफ ऑफ द रिज रेगुलराइजेशन इक्वेशन, दिस पार्ट. सो इतने पार्ट को हम कहते हैं दिस इज माई लॉस इक्वेशन. लॉस इक्वेशन का क्या मतलब है? बेसिकली दिस इज द क्रॉस एंट्रोपी loss function used for classification problems
like digit recognition, right? So क्या मतलब है इसका? बेसिकली लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है हमारे पास. लेट्स से अगर मैंने न्यूरल नेटवर्क्स को यूज किया है अपने एक डेटा सेट के लिए जहां पे मुझे डिजिट्स को रिकॉग्नाइज करना है फ्रॉम इमेजेस. सो बेसिकली माय टास्क इज, हम डिजिट रिकॉग्नाइजेशन मॉडल की बात कर रहे हैं, डीप लर्निंग मॉडल की, जहां पे मुझे क्या करना है, आई हैव टू recognizing the digit from the data set, right? ये मेरा टास्क है, right? अब हर एक, अगर मुझे डिजिट्स को रिकॉग्नाइज करना है, मेरे पास बहुत सारी इमेजेस गिवन है, आई हैव सो मेनी इमेजेस गिवन विद मी, इमेजेस का मेरे पास एक बहुत बड़ा डेटा सेट है, राइट? अब हर एक इमेज के अंदर कोई ना कोई इमेज होगी, उस इमेज को मुझे रिकॉग्नाइज करना है. सो क्या हम कह सकते हैं कि जो भी मेरी इमेज होगी, ईच इमेज belongs to one of the 10 classes. हर एक इमेज जो है कोई ना कोई एक क्लास में फॉल करेगी. क्लासेस कौन कौन सी होगी? या तो मेरी इमेज रिकॉग्नाइज करेगी डिजिट 0 को, या इमेज के अंदर होगी डिजिट 1 या डिजिट 2 या डिजिट 3, डिजिट 4, डिजिट 5, डिजिट 6, डिजिट 7, डिजिट 8 एंड डिजिट 9, राइट? हर एक इमेज हम कह रहे हैं हम डिजिट रिकॉग्निशन मॉडल को यूज कर रहे हैं. डिजिट रिकॉग्निशन मॉडल में क्या होगा, हर एक इमेज जो है वो मेरी एक डिजिट को रिकॉग्नाइज कर रही है, राइट? टोटल कितने डिजिट्स होती हैं? 10 डिजिट्स हैं. तो टोटल कितनी क्लासेस हुई मेरे पास? 10 क्लासेस. हर एक इमेज बिलोंग कर रही है टू वन ऑफ दोस 10 क्लासेस, राइट? सो कैन आई से, अगर मेरी हर एक इमेज बिलोंग कर रही है टू वन ऑफ द 10 क्लासेस, सो बेसिकली द नेटवर्क आउटपुट्स 10 प्रोबेबिलिटीज. 10 प्रोबेबिलिटीज का क्या मतलब है? हर एक इमेज जो है वो मेरी एक डिजिट को रिकॉग्नाइज कर रही है, राइट? तो हर एक इमेज बता रही है कि ये इमेज लेट्स से डिजिट 3 की है, ये इमेज लेट्स से डिजिट 4 की है, ये इमेज डिजिट 5 की है, डिजिट 1 की, डिजिट 0 की एंड सो ऑन, राइट? अब अगर इमेज मेरी बिलोंग कर रही है टू वन ऑफ द 10 क्लासेस, सो बेसिकली हमें आउटपुट क्या मिलेगा? हमें प्रोबेबिलिटीज मिलेंगी, राइट? हमें प्रिडिक्टेड प्रोबेबिलिटी मिलेगी ना कि उस इमेज के अंदर कौन सी डिजिट है, उसकी प्रोबेबिलिटी को मॉडल ने क्या प्रिडिक्ट किया है, राइट? सो द नेटवर्क आउटपुट्स 10 प्रोबेबिलिटीज, राइट? तो एग्जाम्पल अगर हम देखें किस टाइप से होगा इसका, सपोज ये 10 प्रोबेबिलिटीज हैं जो मॉडल ने, कोई एक इमेज हमने ले ली, दिस इज माई इमेज, राइट? ये इमेज जो है लेट्स से है डिजिट 3 की, राइट? इस इमेज के लिए मॉडल ने 10 प्रोबेबिलिटीज का आउटपुट दिया. क्या क्या 10 प्रोबेबिलिटीज हैं? लेट्स से क्या डिजिट 0 होने की प्रोबेबिलिटी है 0.01, डिजिट 1 होने की प्रोबेबिलिटी है लेट्स से 0.02, डिजिट 2 होने की प्रोबेबिलिटी है लेट्स से 0.03, डिजिट 3 होने की प्रोबेबिलिटी है लेट्स से 0.85, डिजिट 4 होने की प्रोबेबिलिटी 0.04, डिजिट 5 होने की प्रोबेबिलिटी लेट्स से 0.02, डिजिट 6 होने की प्रोबेबिलिटी लेट्स से 0.01 ले लेते हैं, डिजिट 7 होने की प्रोबेबिलिटी भी लेट्स से 0.01, 8 होने की प्रोबेबिलिटी 00 एंड 9 होने की प्रोबेबिलिटी 0.01. सो बेसिकली इमेज बिलोंग कर रही है टू वन ऑफ द 10 क्लासेस एंड हर एक इमेज के लिए मॉडल ने ये 10 प्रोबेबिलिटीज को आउटपुट दे दिया. तो इन 10 प्रोबेबिलिटी से मुझे क्या पता लग रहा है? जो मेरी इमेज है वो इमेज 3, इमेज के अंदर मेरी डिजिट है 3, राइट? उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.85. सो कैन आई से मॉडल को ये लग रहा है कि जो, क्योंकि इसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है अमंग ऑल द प्रोबेबिलिटीज, राइट? तो इसका क्या मतलब है? मॉडल को ऐसा लग रहा है कि ये जो इमेज है इसके कौन सी डिजिट को रिकॉग्नाइज कर रही है? ये रिकॉग्नाइज कर रही है डिजिट 3 को, राइट? सो दिस इज हाउ द डिजिट रिकॉग्निशन मॉडल वर्क्स. हर एक इमेज बिलोंग करेगी टू वन ऑफ द 10 क्लासेस. वाई 10 क्लासेस? बिकॉज 10 डिजिट्स है मेरे पास. एंड हर एक इमेज के लिए द नेटवर्क आउटपुट्स 10 प्रोबेबिलिटीज, उसमें से जिसकी प्रोबेबिलिटी भी सबसे हाईएस्ट है, तो ये बेसिकली मॉडल ने प्रिडिक्ट करी है प्रोबेबिलिटी कि उसको लग रहा है कि ये जो इमेज है इसके अंदर कौन सी डिजिट है? मेरी डिजिट 3 है, राइट? अब ये जो हमारे डिफरेंट सिंबल्स हमने लिखे हैं हमारी इक्वेशन में, इनका मतलब समझते हैं. ये जो आई है, आई का क्या मतलब है? आई बेसिकली है मेरा इंडेक्स ऑफ द ट्रेनिंग एग्जाम्पल. कौन सी इमेज की हम बात कर रहे हैं? टोटल मेरे पास 10,000 इमेजेस हैं. 10,000 इमेजेस में हम कौन सी इमेज की बात कर रहे हैं? उसका इंडेक्स, राइट? सो इंडेक्स ऑफ द ट्रेनिंग एग्जाम्पल. लेट्स से अगर मेरे ट्रेनिंग सैंपल्स में 10 इमेजेस हैं,
या फिर लेट्स से 20 इमेजेस हैं, तो आई का इंडेक्स कहाँ से होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 अप टू 20। यहाँ पे हमें पता नहीं कितने भी सैंपल्स हो सकते हैं, तो यहाँ पे हमने ले लिया n। सो वी हैव रिटन i इक्वल्स टू 1 to n, जो डिनोट कर रहा है इंडेक्स ऑफ माई ट्रेनिंग सैंपल। बेसिकली आप इमेज नंबर कह सकते हो इसको। ये जो इमेजेस है ना, इनके नंबर्स, इनको हमने नंबर दे दिया। इमेज 1 नंबर 1, इमेज नंबर 2, इमेज नंबर 3, इमेज नंबर 4, इमेज नंबर 5 एंड सो ऑन अप टू इमेज नंबर n। Then this m, what is this m is denoting? This m is denoting my class index. अभी हमने देखा जो image है, they can belong to one of the 10 classes, right? So this denotes my class index. तभी इसका इंडेक्स हम दे सकते हैं, इसकी नंबरिंग कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 से 9 तक। फॉर द 10 classes that I have, for digit 0 to digit 9, that is why the numbering is going like this. So m equals to 0 to 9, right? Now this value yim denote कर रहा है मेरी actual label। yim denotes my actual label। So ये जो मेरा actual label होता है, ये basically encoded value होती है। The value is encoded। encoded का क्या मतलब है? Let's say example, if the जो मेरी image है वो है digit 3 की, if the image is digit 3, right? तो ये जो yim की वैल्यू होगी, क्या वैल्यू होगी इसकी? yim in this case will be 0 0 0, for 3 it will be 1 4 0 5 6 7 8 9। तो जोन सी डिजिट होगी एक्चुअल में वो, उसके लिए 1 होगा और बाकी जितने भी रिमेनिंग होंगे उन सब के लिए 0 होगा। तो टोटल मेरे पास 10 क्लासेस है, राइट? तो 10 डिजिट्स है मेरे पास। 10 डिजिट्स में से कोई एक ही डिजिट होगी, इमेज सिर्फ एक ही डिजिट को रिकॉग्नाइज कर रही है, तो जिस डिजिट को जो एक्चुअल वैल्यू है उस डिजिट की इन दैट इमेज, उसके लिए वो वैल्यू 1 होगी एंड फॉर द रिमेनिंग इट विल बी 0। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग इट इज एनकोडेड। सो द yim डिनोट कर रहा है मेरा एक्चुअल लेबल को। अगर मैं कहती कि जो इमेज है वो है मेरी डिजिट 4 की, तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाती, ये 1 हो जाती। डिजिट 5 की तो ये 0 हो जाती, ये 1 हो जाती। सो लाइक दिस। सो yim डिनोट कर रहा है मेरे एक्चुअल लेबल को। सो आई कैन राइट इट लाइक दिस कि जो मेरा y की वैल्यू है फॉर इमेज 3 इज 1 एंड फॉर ऑल अदर yim it is 0, right? Coming to the next symbol which is my fmxi. So fmxi क्या है मेरी? Predicted probability, this is my predicted probability that image I belongs to class m। तो ये जो मेरा fmxi है मेरी प्रिडिक्टेड प्रोबेबिलिटीज है। अभी जो मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स लिखा था ना प्रोबेबिलिटीज का, ये मैट्रिक्स है मेरी प्रिडिक्टेड प्रोबेबिलिटी जो नेटवर्क ने आउटपुट करी है। नेटवर्क को ये रिजल्ट लग रहा है बेस्ड ऑन द इनपुट दैट वी हैव गिवन। सो दिस fmxi डिनोट्स माय प्रिडिक्टेड प्रोबेबिलिटी की इमेज 1 या इमेज 2 या इमेज 3 बिलोंग्स टू क्लास m, यानी कि क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 डिपेंडिंग कि वो कौन सी इमेज डिजिट की इमेज है। सो लेट्स से जो भी हमने लिखा था, जो मैंने मैट्रिक्स लिखा था, दिस इज माय fmxi। फॉर डिजिट 3 इट वाज 0.85 एंड लेट्स से रैंडम वैल्यूज फॉर ऑल अदर, राइट? तो अब मेरी जो लॉस है, लॉस इक्वेशन क्या लिखी है हमने? लॉस इक्वेशन लिखी है समेशन i इक्वल्स टू 1 से n तक, जितने मेरे ट्रेनिंग सैंपल्स है सबका समेशन, देन जो भी क्लास को वो बिलोंग कर रहे हैं, एक्चुअल लेबल मल्टीप्लाइड बाय द लॉग ऑफ द प्रिडिक्टेड प्रोबेबिलिटी, लाइक दिस। दिस इज माय लॉस इक्वेशन। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, तो इसको सिंप्लीफाई करके हम देख सकते हैं ये जो मेरा yim है, ये हम इसकी वैल्यू जो होगी एक वैल्यू के लिए 1 होगी एंड रेस्ट ऑल के लिए 0 है, राइट? अभी यही हमने इसका मैट्रिक्स देखा था अभी कि जिस इमेज की एक्चुअल लेबल होगा उसके लिए तो वो 1 होगा एंड रेस्ट ऑल के लिए वो क्या होगा? 0 होगा। तो नेवरथलेस इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा तो कभी हो ही नहीं सकती,
राइट, बाकी सबके लिए तो 0 है। तो ये मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स की जो वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती, ना 1 से कम हो सकती। कोई ना कोई एक इमेज के अंदर तो कोई ना कोई एक डिजिट को तो वो इमेज रिप्रेजेंट करेगी, राइट, तो 0 भी नहीं हो सकती। और जिस इमेज के लिए रिप्रेजेंट करेगी उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो कैन आई सिंप्लीफाई इट लाइक दिस दैट only one YIM is 1, rest all are 0. So my formula basically becomes, अगर मैं इसकी वैल्यू को 1 ले लूँ इतने पार्ट के लिए, दिस पार्ट इज माई 1, सो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाता है, सिर्फ इतना पार्ट और ये जो लॉग वाला पार्ट है। तो समेशन i इक्वल्स टू 1 से n तक लॉग, राइट। सो बेसिकली हम कह सकते हैं जो मेरा लॉस फंक्शन है दैट इज नथिंग बट एक्चुअली log of the predicted probability of the correct class. So my actual formula is this. अगर मैंने summation अभी के लिए हटा दिया, so this is my actual value. So basically हम क्या कर रहे हैं, minus of predicted probability of the correct class, right? अब सपोज एक एग्जांपल लेके देखते हैं और इन वैल्यूज को फिट करते हैं। सपोज जो मेरी करेक्ट डिजिट है, इमेज जो मेरी रिप्रेजेंट कर रही है, कोई रैंडम इमेज है, उस इमेज में वो मेरी रिप्रेजेंट कर रही है डिजिट 3 को, राइट। सो जो मेरे को मॉडल ने प्रिडिक्शन दी है, दैट मीन्स जो मेरा FMXI है दैट इज द सेम मैट्रिक्स जो अभी हमने लिखा था, एंड रेस्ट ऑल वैल्यूज अप टू 10। तो बेसिकली मेरी डिजिट 3 के होने की क्या वैल्यू है, ये डिजिट 3 की प्रोबेबिलिटी आई है 0.85, राइट। तो मेरा जो लॉस है, अगर मैं डायरेक्टली इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं, ये जो अभी हमने फॉर्मूला देखा सिंप्लीफाई करके, कि मेरा जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो क्या बन जाता है, क्योंकि इतने पार्ट की वैल्यू तो हमेशा 1 ही होगी, आपका एक्चुअल फॉर्मूला क्या बन जाता है, माइनस लॉग ऑफ FMXI। सो कैन आई राइट इट लाइक दिस, कि मेरा जो लॉस है, लॉस बिकम्स माइनस लॉग ऑफ 0.85। नाउ अगर मैं देखूं, ये जो मेरा माइनस लॉग ऑफ 0.85 है, ये मेरी बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, द वैल्यू इज वेरी स्मॉल, क्योंकि मेरा लॉस जो है वो बहुत कम है। तो क्या है बेसिकली, ये मॉडल के लिए क्या है, एक एप्रिसिएशन है। अगर मेरा लॉस की वैल्यू जितनी कम आएगी उतना ही अच्छा है, राइट। सो इफ माई लॉस बिकम स्मॉल देन माई मॉडल इज रिवॉर्डेड। अगर लॉस की वैल्यू आपकी कम आती है, इन दैट केस द मॉडल इज रिवॉर्डेड। बट अब अगर इसका दूसरा कुछ पार्ट करके देखते हैं, अगर मेरा मॉडल जो है वो गलत है, उसने गलत प्रिडिक्शन दी, इफ द मॉडल इज रॉन्ग, लेट्स से सपोज मॉडल ने प्रिडिक्शन दी ये कि उसी सेम एग्जांपल में इमेज तो है डिजिट 3 की, बट उसने प्रिडिक्शन दी डिजिट 0 के लिए प्रोबेबिलिटी है ये, डिजिट 1 के लिए प्रोबेबिलिटी है ये, डिजिट 2 के लिए प्रोबेबिलिटी है ये, डिजिट 3 के लिए प्रोबेबिलिटी है ये, डिजिट 4 के लिए प्रोबेबिलिटी है, 5 के लिए ये, एंड सो ऑन अप टू डिजिट 9। तो डिजिट 3 की उसने क्या प्रोबेबिलिटी दी, 0.10 दी। अब मेरा लॉस क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ 0.10। ये जो 10 माइनस लॉग ऑफ 0.10 वैल्यू बड़ी होती है एज कंपेयर टू 0.85, राइट। सो दिस वैल्यू इज लार्ज, क्योंकि ये वैल्यू, लॉस की वैल्यू इसमें ज्यादा आ रही है, तो इन दिस केस द मॉडल इज पेनलाइज्ड, राइट। तो जितनी कम मेरी लॉस की वैल्यू आएगी उतना मेरा मॉडल विल बी रिवॉर्डेड, एंड जितनी ज्यादा मेरी लॉस की वैल्यू आएगी उतना मेरा माई मॉडल इज पेनलाइज्ड। तो तभी हम इसको रेगुलराइजेशन कह रहे हैं। रेगुलराइजेशन यही करता है कि कैसे आपको आपके वेट्स को एडजस्ट करना है बेस्ड ऑन द वेट्स दैट आर अवेलेबल, उनको किस तरीके से अपडेट करना है। जो लार्जर वेट्स होंगे दे विल बी पेनलाइज्ड मोर, जो स्मॉलर वेट्स होंगे दे विल बी पेनलाइज्ड लेस, एंड दे आर मेकिंग माई मॉडल एक्चुअली सिंपलर टू कैलकुलेट। सो बेसिकली अगर हम देखें यहाँ पे मेरा जो लॉग फंक्शन है, जब हम लॉग फंक्शन यूज कर रहे हैं, लॉग को हमने क्यों यूज करा है, लॉग को हमने यहाँ पे इसलिए यूज करा बिकॉज लॉग पनिशेस कॉन्फिडेंट रॉन्ग प्रिडिक्शंस। अब देखो जो हमने अभी लास्ट एग्जांपल लिया, एक्चुअल में इमेज तो थी मेरी डिजिट 3 की, तो जब उसने इमेज 3 मॉडल ने डिजिट 3 के लिए प्रोबेबिलिटी प्रिडिक्ट करी 0.85, इन दैट केस तो प्रिडिक्शन करेक्ट है।
डिजिट 3 है वो, और उसकी प्रिडिक्शन और इसकी प्रोबेबिलिटी भी उसने सबसे हाईएस्ट दी है, सो इन दैट केस द मॉडल इज रिवॉर्डेड। पर जब उसने सेम डिजिट की प्रिडिक्शन प्रोबेबिलिटी को दिया 0.10, इन दैट केस द मॉडल इज पेनलाइज। तो लॉग फंक्शन क्या कर रहा है, जहां उसे पता होता है कि प्रिडिक्शन गलत है उसको उतना ज्यादा और पनिश करेगा, इट पनिशेस कॉन्फिडेंट रॉन्ग प्रिडिक्शंस। लाइक फॉर एग्जाम्पल इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, सपोज मैंने यहाँ पे प्रिडिक्शन प्रोबेबिलिटी ली और यहाँ पे लॉस लिया। सपोज प्रिडिक्शन प्रोबेबिलिटी आई 0.9 विच इज वेरी हाईएस्ट, तो उस केस में क्या है, लॉस विल बी स्मॉल। प्रिडिक्शन प्रोबेबिलिटी से और कम हो गई 0.5, तो मीडियम लॉस। प्रिडिक्शन प्रोबेबिलिटी और थोड़ी कम हो गई 0.1, तो लार्ज लॉस। प्रिडिक्शन प्रोबेबिलिटी और कम हो गई 0.01, देन वेरी लार्ज लॉस। तो जैसे जैसे प्रिडिक्शन प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कम होती जा रही है वैसे वैसे आपका जो लॉस है वो बढ़ता जा रहा है, राइट? तो इससे हमें क्या पता लग रहा है, दैट बिकॉज ऑफ दिस लॉग फंक्शन, क्योंकि वो रॉन्ग प्रिडिक्शंस के लिए उसको ज्यादा पेनलाइज करता है, तो मॉडल इज एनकरेज टू गिव हाई प्रोबेबिलिटी टू द करेक्ट क्लास। जो भी मेरी करेक्ट क्लास है उसको हम क्या असाइन करेंगे, हाई प्रोबेबिलिटी असाइन करेंगे, सो दैट इट गिव्स the value of loss as less. So because of this log function, the model is encouraged to assign high probability to the correct class, right? So basically क्या कर रहे हैं, मेरा फॉर्मूला एक बार दोबारा इसकी फाइन वैल्यूज देख लेते हैं। जो इतना पार्ट है ये क्या ऐड कर रहा है, ये पार्ट ये ऐड कर रहा है आपका लॉस फॉर ऑल द ट्रेनिंग इमेजेस, एड्स लॉस फॉर ऑल ट्रेनिंग इमेजेस। ये क्या कर रहा है, ये चेक कर रहा है फॉर ऑल द 10 क्लासेस दैट आई हैव, चेक्स फॉर ऑल 10 क्लासेस। ये आपका एक्चुअल लेबल है एंड ये आपका प्रिडिक्टेड प्रोबेबिलिटी है बाय द मॉडल। सो क्रॉस एंट्रोपी लॉस जो हमने देखा, क्रॉस एंट्रोपी लॉस क्या मेजर करता है, इट मेजर्स हाउ रॉन्ग द प्रिडिक्टेड प्रोबेबिलिटीज आर। इफ द न्यूरल नेटवर्क गिव्स अ हाई प्रोबेबिलिटी टू द करेक्ट क्लास, द लॉस इज स्मॉल। If it gives a low probability, the loss becomes large. तो यही अभी हमने देखा with the help of the digit recognition example. Now coming to the second part of our equation, which is this part. So ये हमने दो पार्ट देखे अपनी रिज रेगुलराइजेशन इक्वेशन के। जो फर्स्ट पार्ट था लॉस इक्वेशन हम देख चुके हैं। लेट्स कम टू द सेकेंड टर्म विच इज दिस पार्ट, राइट? सो लेट्स राइट दिस वैल्यू lambda summation of this square of all the theta j's। तो ये क्या है मेरी, ये है मेरी रेगुलराइजेशन पेनल्टी। जो फर्स्ट पार्ट था रेगुलराइजेशन इक्वेशन का वो था मेरा क्रॉस एंट्रोपी लॉस। द सेकेंड पार्ट ऑफ माई रिज रेगुलराइजेशन इक्वेशन इज माई रेगुलराइजेशन पेनल्टी। रेगुलराइजेशन पेनल्टी का क्या मतलब है, और इसको हम ये भी कह सकते हैं दिस इज माई रिज पेनल्टी। अब यहाँ पे ये जो थीटा जेज है, थीटा जेज क्या है, ये मेरे वेट्स हैं ऑफ द न्यूरल नेटवर्क। ये हमने देखा था कि जो थीटा होता है वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेट्स एंड बायसेस। तो मेरे वेट्स और बायसेस का कॉम्बिनेशन है ये। सो आई एम राइटिंग दिस एज वेट्स ऑफ द न्यूरल नेटवर्क, राइट? लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मेरी एक थीटा 1 की वैल्यू है लेट्स से 3, थीटा 2 की वैल्यू है लेट्स से -5, थीटा 3 की वैल्यू है लेट्स से 7, तो मेरी पेनल्टी क्या हो जाएगी, इन सब का मैं समीशन करूं स्क्वायर का 9 + 25 + 49, सो माय पेनल्टी बिकम्स 83, राइट? तो इसका क्या मतलब है, जितने ज्यादा आपके वेट्स बड़े होंगे उतनी ही आपकी पेनल्टी बड़ी होगी, और जितने आपके वेट्स छोटे होंगे उतनी आपकी पेनल्टी छोटी होगी। तो यही मतलब है यहाँ पे लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय दिस वेट, जितने भी वेट्स हैं आपके न्यूरल नेटवर्क के उनका स्क्वायर का समेशन हम कर रहे हैं, जो ये आपको ये इंडिकेट करता है
that large weights increase the penalty. अब ये तो हो गया थीटा जेस के बारे में. हम यहाँ पे एक स्टार्टिंग में पैरामीटर भी देख सकते हैं जो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, विच इज माई रिज रेगुलराइजेशन पैरामीटर. तो इस लैम्डा का क्या रोल होता है यहाँ पे? रोल ऑफ लैम्डा. लैम्डा क्या करता है आपका? लैम्डा कंट्रोल्स हाउ स्ट्रॉन्ग द पेनल्टी इज. लैम्डा आपका ये कंट्रोल करता है कि पेनल्टी कितनी बड़ी होनी चाहिए, उसकी जो जितना अफेक्ट होने वाला है उसको कंट्रोल करता है, राइट. अगर मेरे लैम्डा की वैल्यू छोटी है, स्मॉल लैम्डा मींस मॉडल focuses more on fitting data, and large lambda means model strongly penalizes large weights, right. तो जितनी ज्यादा लैम्डा की वैल्यू छोटी होगी उतना ही मेरा मॉडल फोकस करेगा डेटा को फिट करने में, और जितनी उसकी वैल्यू बड़ी होगी उतना ही वो स्ट्रांगली पेनलाइज करेगा लार्ज वेट्स को. तो ये मतलब होता है जो मेरा सेकंड पैरामीटर होता है रिज रेगुलराइजेशन इक्वेशन का. लेट्स से अगर लैम्डा की वैल्यू है 0.01, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? दिस इज अ वीक रेगुलराइजेशन. एंड अगर लैम्डा की वैल्यू है लेट्स से 1, दिस इज इंडिकेटिंग अ स्ट्रॉन्ग रेगुलराइजेशन, right. So this is what we mean by the ridge regularization penalty. अब जैसे हमारी रिज रेगुलराइजेशन होती है वैसे हम एक टाइप से और रेगुलराइजेशन कर सकते हैं, विच इज माई लासो रेगुलराइजेशन. लासो रेगुलराइजेशन. अब डिफरेंस क्या होता है रिज रेगुलराइजेशन में एंड लासो रेगुलराइजेशन में? सिर्फ एक माइनर सा डिफरेंस होता है कि जो मेरी रिज रेगुलराइजेशन होती है दैट इज जो भी मेरा रेगुलराइजेशन पैरामीटर है मल्टीप्लाइड बाय द समेशन ऑफ ऑल द थीटा जी. जो मेरा थीटा इंडिकेट कर रहा है वहां पे वेट ऑफ माई जितने भी मेरे वेट्स हैं इन माई न्यूरल नेटवर्क. बट इन केस ऑफ लासो रेगुलराइजेशन जो मेरी ये फैक्टर होता है दिस बिकम्स लैम्डा समेशन ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ थीटा जे. वहां पे हम स्क्वायर नहीं लेते, वहां पे हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं जो भी मेरे वेट्स हैं. बट इन केस ऑफ रिज रेगुलराइजेशन वहां पे हम इसका स्क्वायर लेते हैं, राइट. दिस इज इन केस ऑफ लासो एंड दिस इज इन केस ऑफ रिज, राइट. तो क्या डिफरेंस आ जाता है इससे? क्योंकि रिज रेगुलराइजेशन में आप सिर्फ थीटा स्क्वायर्स लेते हो तो वहां पे क्या होता है, वहां पे श्रिंकेज, आप वेट्स को जब श्रिंक करोगे तो श्रिंकेज ऑफ वेट्स विल बी समथिंग लाइक दिस कि 5 हुआ, देन 5 से 3 हुआ, देन 2 हुआ, देन 1 हुआ, देन 0.5 हुआ, देन 0.05 हुआ, बट 0 कभी नहीं होता. बट लासो रेगुलराइजेशन के केस में वेट्स की जब श्रिंकेज होती है तो इट कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि वो 0 भी हो जाए, राइट. सो लासो कैन फोर्स वेट्स टू बिकम 0 बट रिज रेगुलराइजेशन नेवर फोर्सेस वेट्स टू बिकम 0. अब क्योंकि अगर कोई एक वेट आपका 0 हो जाता है तो क्या होगा, ये वैल्यू अल्टीमेटली 0 हो जाएगी, राइट. तो आपका फीचर ही एलिमिनेट हो जाएगा वहां से. बट रिज रेगुलराइजेशन में ऐसा नहीं होता है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिज एंड लासो. The next term is epoch. Now this term is commonly used in the neural network. Epoch का क्या मतलब होता है? One complete pass through the entire training data set. अब नॉट नेसेसरली इन केस ऑफ न्यूरल नेटवर्क, जो भी मेरे मॉडल्स होंगे जहां पे आप पहले ट्रेन कर रहे हो तो एक कंप्लीट पास जो हो जाता है आपका ट्रेनिंग का उसको हम एपोक कहते हैं. दैट वन एपोक इज कंप्लीटेड थ्रू द एंटायर ट्रेनिंग डेटा सेट. लेट्स से अगर मेरे डेटा सेट में फॉर एग्जांपल है कुछ 60,000 इमेजेस, राइट. सो वन एपोक का क्या मतलब होगा? वन एपोक मीन्स दैट द मॉडल हैज सीन ऑल द 60,000 ट्रेनिंग सैंपल्स. This is what we mean by epoch. The next thing is, what is the difference between training error and validation error? Training error and validation error. So let's see what is the difference between training error and validation error.
So let's see what is training error. Training error is the error that the model makes on the data it was trained on. तो जब हम एक मॉडल को एक डेटा पे ट्रेन कर देते हैं, राइट, ट्रेन करने के बाद जब हम उसको टेस्ट करते हैं तो उसमें जो एरर आता है वो मेरा ट्रेनिंग एरर आता है. So how it tells us how well the model has learned the training data set. Example, suppose we train a neural network to recognize handwritten digits using 50,000 images. After training, we test the model on the same 50,000 images. If the model predicts most of them correctly, the training error is low. Let's say हमने मॉडल को पहले ट्रेन किया यूजिंग 50,000 इमेजेस, देन उन 50,000 इमेजेस पे हमने उसको टेस्ट किया. उसको टेस्ट करने में वो कितने हमें सही बताता है कितने गलत बताता है, वो उसका ट्रेनिंग एरर होता है. तो लेट्स से मॉडल ने 98% तो मुझे सही बताई इमेजेस, बट उसने 2% मेरे को गलत बताई, तो उसका ट्रेनिंग एरर क्या हो गया, 2% हो गया. सो दिस इज माई ट्रेनिंग एरर, जो जब मॉडल एरर देता है उस डेटा पे जिसी डेटा पे हमने उसको ट्रेन किया है. नेक्स्ट कम्स दी वैलिडेशन एरर. वैलिडेशन एरर का क्या क्या मतलब होता है? वैलिडेशन एरर इज द एरर विच इज मेजर्ड ऑन अ सेपरेट डेटा सेट दैट द मॉडल हैज नेवर सीन ड्यूरिंग ट्रेनिंग. ट्रेनिंग एरर में तो हम सेम डेटा पे ही ट्रेन कर रहे हैं, सेम पे ही टेस्ट करते हैं, बट वैलिडेशन एरर में हम ट्रेन तो दूसरे डेटा पे करते हैं, टेस्ट उसे दूसरे डेटा पे करते हैं, राइट. तो मॉडल कितना मुझे एरर देता है जब हम उसे टेस्ट करते हैं ऑन अ सेपरेट डेटा सेट दैट द मॉडल हैज नेवर सीन ड्यूरिंग ट्रेनिंग. So it basically tells us how well the model generalizes to new data. Suppose we keep aside 10,000 images that are not used for training. मैंने पहले उसे 50,000 images पे ट्रेन कर दिया, देन अलग से मेरे पास 10,000 images थी, उस पर मैंने उसको टेस्ट करा. उन 10,000 images पे जब मैंने उसको टेस्ट करा, उसने मुझे कितनी सही बताई एंड कितनी गलत बताई, वो आते हैं उसका वैलिडेशन एरर. तो लेट्स से 10,000 images पे जब हमने उसको टेस्ट किया तो उसने 93% तो मुझे सही बताई एंड 7% गलत बताई. तो वैलिडेशन एक्यूरेसी कितनी होगी, 93%, एंड वैलिडेशन एरर कितना हो गया, 7%. सो ये बताता है मुझे हाउ द मॉडल परफॉर्म्स ऑन न्यू अनसीन डेटा, और ट्रेनिंग एरर बताता है हाउ द मॉडल परफॉर्म्स ऑन द सेम डेटा ऑन विच इट हैज बीन ट्रेन्ड. So the next thing is early stopping. Early stopping means to prevent overfitting, we stop training when validation error starts increasing. This is called early stopping. जब आपका validation error बढ़ने लग जाता है उस टाइम पे हम रुक जाते हैं, and that is what we mean by early stopping of data. Now the next thing is, what do we mean by dropout? Dropout means randomly turning off some neurons during the training part. What do we mean by this? अब इसमें डायग्राम में हमें दो फिगर्स दी हुई हैं. ये जो लेफ्ट हैंड राइट साइड वाली फिगर है, दिस इज इंडिकेटिंग कि जो मेरा पूरा नेटवर्क है वो एक्टिव है, नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क, राइट. पर जो मेरी राइट हैंड साइड वाली फिगर्स है उसमें हम देख सकते हैं मेरे कुछ न्यूरॉन्स ऑफ है. कौन कौन से न्यूरॉन्स ऑफ है? द वंस विच आर मार्क्ड इन दिस ग्रे. जैसे ये वाला न्यूरॉन ऑफ है, दिस न्यूरॉन इज ऑफ, दिस न्यूरॉन इज ऑफ. सो ड्रॉप आउट का क्या मतलब है? जब हम रैंडमली अपने आप से कुछ न्यूरॉन्स को ऑफ कर देते हैं इन आर नेटवर्क, देन दैट इज व्हाट वी मीन बाय ड्रॉप आउट. नाउ द क्वेश्चन इज, कैसे ड्रॉप आउट करते हैं हम? हाउ ड्रॉप आउट वर्क्स? सो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पार्ट, रैंडमली सेलेक्ट सम न्यूरॉन्स, टेम्परली रिमूव देम एंड ट्रेन द नेटवर्क विद द रिमेनिंग न्यूरॉन्स. कुछ न्यूरॉन्स को हमने रैंडमली सेलेक्ट कर दिया, उनको ऑफ कर दिया या उनको हटा दिया टेम्परली फ्रॉम आवर नेटवर्क, एंड देन जो भी हमारी ट्रेनिंग है वो हम करते हैं ऑन द रिमेनिंग न्यूरॉन्स विच आर लेफ्ट. Then after this part is done, then the next step is drop a different set of neurons. तो एक एक करके अगर मेरे पास एक हिडन लेयर में लेट्स से मेरे पास 4 न्यूरॉन्स है, या लेट्स से हमारे डायग्राम पे ही जाते हैं, पहले हमने एक न्यूरॉन इस इनपुट लेयर को ऑफ कर दिया, 2 न्यूरॉन्स इस हिडन लेयर के ऑफ कर दिए. द नेक्स्ट स्टेप, लेट्स से हमने इनपुट लेयर का ये न्यूरॉन ऑफ कर दिया, ये वाले न्यूरॉन्स हिडन लेयर के ऑफ कर दिए. तो एक एक करके हम कुछ कुछ न्यूरॉन्स को रैंडमली सेलेक्ट करते जाते हैं फ्रॉम डिफरेंट न्यूरॉन फ्रॉम डिफरेंट लेयर्स, एंड उनको एक एक करके रिमूव करते जाते हैं. सो क्यों हम ऐसा करते हैं? हम ड्रॉप आउट इसीलिए करते हैं ताकि ओवरफिटिंग ऑफ डेटा ना हो, ताकि जो मॉडल है वो ऐसा ना हो. ट्रेनिंग पे तो आपके सही रिजल्ट्स थे, बट व्हेन इट कम्स टू टेस्टिंग, ट्रेनिंग के रिजल्ट्स को मेमोराइज कर ले एंड टेस्टिंग पे हमारे इनवैलिड रिजल्ट्स थे. सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट सिचुएशन फ्रॉम अकरिंग, वी यूज द ड्रॉप आउट मेथड. सो द इंट्यूशन बिहाइंड द ड्रॉप आउट मेथड इज, it forces the network to not depend too much on any single neuron, so neurons learn independently. ड्रॉप आउट को करने का पर्पस यही होता है ताकि हमारा जो नेटवर्क है सिर्फ सिंगल हैंडेडली कुछ न्यूरॉन्स पर डिपेंड नहीं करे, उसे पता लगे कि न्यूरॉन्स के बगैर भी वो इंडिपेंडेंटली हमें सही रिजल्ट्स दे रहा है नहीं दे रहा. दैट इज व्हाई वी आर अडॉप्टिंग द ड्रॉप आउट मेथड. नाउ अगर हम इसको मैथमेटिकली समझें, मैथमेटिकली हम ड्रॉप आउट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बेसिकली अगर मेरा ड्रॉप आउट रेट है, दिस इज माई ड्रॉप आउट रेट,
Let's say my dropout rate is 0.5. 0.5 dropout rate होने का क्या मतलब है? Means 50% neurons are randomly removed. अगर ड्रॉप आउट रेट 0.5 है तो इसका क्या मतलब है? मल्टीप्लाई बाय 100, दैट मीन्स 50% न्यूरॉन जो है मेरे, उनको मैंने रैंडमली रिमूव कर दिया, राइट? अब इतने पार्ट को कॉम्पनसेट करने के लिए जो 50% न्यूरॉन्स अपने रिमूव कर दिए, तो रिमेनिंग न्यूरॉन्स जो मेरे बच गए नेटवर्क में, उनको हम करते हैं स्केल इसीलिए करते हैं ताकि मेरे मॉडल की एफिशिएंसी पे ना फर्क पड़े, राइट? पहले हम मॉडल को ट्रेन कर रहे थे विद 10 न्यूरॉन्स, हमने 5 न्यूरॉन्स को ऑफ कर दिया, रिमेनिंग 5 के साथ कर रहे हैं, तो 5 जो हमने हटा दिए उसको हमने इस तरीके से करना है ना ताकि वो उसको कॉम्पनसेट हम कर पाए, राइट? सो इन ऑर्डर टू कॉम्पनसेट जो रिमेनिंग न्यूरॉन्स हैं उनको हम स्केल कर देते हैं बाय अ फैक्टर ऑफ 1/5, 1/1 - 5, where 5 is my drop out rate. तो अगर मैं इसमें 0.5 जो मेरा ड्रॉप आउट रेट है उसको सब्स्टिट्यूट करूं, सो आई गेट, तो मेरा दिस बिकम्स 2. तो हम स्केलिंग करते हैं बाय फैक्टर ऑफ 2 with the remaining neurons which are left in my network. So dropout neurons are simply basically set to 0 output and the network structure remains same but some neurons becomes inactive. That is what we mean by dropout. The next thing in this is the network tuning. So what do we mean by network tuning is training any neural network is not just about formulas but we must make important choices. तो जब भी हम नेटवर्क ट्यूनिंग की बात कर रहे हैं, हम बात करते हैं उन पैरामीटर्स की, हम इन बात करते हैं कि हर एक लेयर में कितने न्यूरॉन्स होने चाहिए, कितने अप्रोप्रिएट न्यूरॉन्स होने चाहिए, कितनी लेयर्स होनी चाहिए. तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें एफिशिएंटली डिसाइड करेंगी इन गेटिंग अ बेटर आउटपुट फ्रॉम अ न्यूरल नेटवर्क. So the first thing that we must take care of is that how many hidden layer and units that I am using. So basically हमें देखना है कि कितने layers हैं मेरे total neural network में and how many neurons I am using per layer, right? So basically जितने मेरे ज़्यादा neurons होंगे, more neurons will eventually lead to more power and जितने ज़्यादा neurons होंगे उससे overfitting का chance भी बढ़ जाएगा. तो better भी है ये एक तरीके से और ख़राब भी है. जितने ज़्यादा न्यूरॉन्स होंगे इट इवेंचुअली लीड्स टू बेटर रिजल्ट्स, गिव्स यू बेटर पावर, बट इट इवेंचुअली इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ ओवरफिटिंग, राइट? सो अगर आपका नेटवर्क छोटा होता है, स्मॉल नेटवर्क, वो वहाँ पे आपकी एक्यूरेसी कम होगी बट ओवरफिटिंग का चांस नहीं रहेगा. वहाँ पे क्या हो जाएगी? वहाँ पे अंडरफिटिंग हो जाएगी. और अगर मेरा नेटवर्क बड़ा होता है, इफ आई हैव अ लार्ज नेटवर्क, then in that case I have a high training accuracy but it can lead to the risk of overfitting. So ज़्यादा भी खराब है, कम भी खराब है. We must decide an appropriate number जितने neurons and जितनी layers मुझे use करनी है in my neural network, right? तो ड्रॉप आउट रेट में हमने देखा अगर ड्रॉप आउट वैल्यू मेरी कम होती है, लेट्स से 0.2, उस केस में कम अफेक्ट पड़ेगा बिकॉज स्केलिंग कम होगी. और ड्रॉप आउट रेट जैसे अगर मेरा 0.5 है तो उस केस में स्केलिंग विल बी लार्जर, जो हमने अभी देखा था, राइट? देन कम्स द रिज एंड द लासो स्ट्रेंथ. रिज विद द पैरामीटर दैट आई वाज यूजिंग वाज लैम्डा. तो लैम्डा की वैल्यू अगर छोटी है, स्मॉल लैम्डा, सो दैट इंडिकेट्स वीक रेगुलराइजेशन, and large lambda that indicates strong regularization. The third parameter is, and the third essential factor for network tuning is stochastic gradient descent parameter. So for stochastic gradient descent, the important training choices that we need to make sure are the batch size, the number of epochs that I am using, and the data augmentation. So small changes in these parameters can make a big difference. So that is why we have to make sure कि हम अपने regularization parameters क्या choose कर रहे हैं, हम stochastic gradient descent क्या use कर रहे हैं, and हम अपनी कितनी layers and hidden units उसमें use कर रहे हैं. So dropout improves generalization by randomly disabling neurons, while proper tuning of network parameters and understanding model complexity are essential to achieve the best performance for any neural network.
So this was all about the neural networks. In the next video, we'll learn about and we'll solve some of the previous year questions of the neural network. So if you like this video, then do like and share this video and subscribe my channel. You can also follow me on Instagram at Learn with Nikita Jain page and Nikita Jain Insights page, where daily questions are uploaded for practice. Thank you.